Net Enrollment Rates Estimates या NER estimates. NERs measure the number of age-appropriate children in school as a proportion of school-age children for a particular level. और जो NER हैं वो ये measure करते हैं कि एज अप्रोप्रिएट चिल्ड्रन जो हैं, जो एज अप्रोप्रिएट बच्चे हैं, वो एक स्कूल में कितने हैं और जो स्कूल की एज के मुताबिक वो बच्चे किस लेवल पे तालीम हासिल कर रहे हैं. अब NER के जो ग्रुप्स हैं कैलकुलेशंस के अंदर देखते हैं कि उनकी एज ग्रुप्स किन में उनको डिवाइड किया गया है. प्राइमरी एंड कच्ची के जो साल हैं वो 4 to 9 ईयर्स हैं. मिडिल स्कूल के 10 से 13 साल की एज है और हाई स्कूल 13 से 15 साल की उम्र. According to Pakistan's Bureau of Statistics 2011, substantial overlap in the data regarding primary and कच्ची age groups is expected. यानी हम अगर Bureau of Statistics 2011 की रिपोर्ट्स को देखें तो एक ओवरलैप है जो डेटा में एक्सपेक्टेड है और वो है प्राइमरी और कच्ची जमात के बच्चों का. Data for middle and high school shows specific age groups corresponding to grades 6 to 8 and grades 9 to 10 respectively. And now the data indicates that the children in middle and high schools tend to be in older age groups within the categories used to calculate NERs. और डेटा ये भी इंडिकेट करता है कि जो बच्चे मिडिल और हाई स्कूल में हैं वो अपनी उम्र से ज़्यादा हैं जो कि उस ग्रुप के अंदर फॉल करने चाहिए. A higher proportion of middle school children fall in the older age groups, so children older than 9 years are expected to be in primary school but are not included in net enrollment calculations. और अगर हम देखते हैं कि बच्चे जो अपनी उम्र से ज़्यादा हैं उस ख़ास तालीम के लेवल के लिए वो इनरोल्ड हैं तो फिर ये बात बहुत एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 9 साल के जो बच्चे हैं वो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी NERs के अंदर वो इंक्लूडेड नहीं बिकॉज दे कैन नॉट बी असाइंड द स्लॉट in that particular category of the data. Children older than 15 years are also enrolled at matriculation level or in high school, although this is not reflected in the NER data. And similarly, NER data के अंदर जो बच्चे 15 साल की उम्र से ज़्यादा हैं और अभी मेट्रिकुलेशन में या 10वीं जमात में एनरोल हैं, उनका डेटा भी किसी सूरत हमें नज़र नहीं आता. Government schools do not deny admission to children who want to attend, so having children of various ages and skill backgrounds make it difficult to teach at grade appropriate levels. Now, there is another difficulty कि जो हमारे हुकूमत के स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, वो लोगों को एडमिशन डिलाई नहीं करते और इसलिए नहीं करते कि पार्टिसिपेशन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में. लेकिन उसके साथ जो मसला सामने आता है वो ये है कि एज अप्रोप्रिएट लर्निंग और टीचिंग जो है उसमें एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी, एक लैग, एक गैप सामने आता है जो कि हर तरह से बच्चे की डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है. Although net enrollment rates do not capture accurate levels of school participation, the data indicates substantial differences between urban and rural and male and female enrollments. अब हम ये देखते हैं कि जो enrollments के हमारे पास डेटास हैं वो तकरीबन एक्यूरेसी तो बहुत हद तक नहीं है, बहुत में अंदर एक्यूरेट रिजल्ट्स तो हमारे सामने नहीं लाते, लेकिन हाँ उससे ये ज़रूर पता चलता है कि एक सब्सटैंशियल डिफरेंस, एक बहुत बड़ा फ़र्क है अर्बन और रूरल के अंदर और फिर उसके साथ साथ मेल और फीमेल एनरोलमेंट्स के अंदर. अब फाइंडिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2011. अब 2011 में जो फाइंडिंग्स है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, आइए देखते हैं वो क्या है. In primary and Kutchi age group, the total enrollment in rural areas of Punjab for males and females was calculated to be 67 and 61 respectively, while in urban areas it was 80 and 77. So here we see that the participation rates vary according to males and females and also according to the rural and urban areas. So it is higher for the urban areas, and also we see that there is a difference between the male and female enrollment rates. The difference increases in middle and high schools with 55 enrollments for males and 46 for females in rural areas. In middle schools and 75 males and 85 females in urban areas. तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंस फिर बढ़ता जाता है मिडिल लेवल और हाई लेवल के ऊपर, जबकि ये 55 हो जाती हैं फॉर मेल्स और 46 हो जाती हैं फीमेल्स रूरल एरियाज़ में, और उसके साथ साथ 75 मेल्स हैं एंड 85 फीमेल्स हैं जो कि शहरी इलाकों में है. तो हम ये देखते हैं कि शहरी इलाकों में एनरोलमेंट का तनासुब ज़्यादा है और देही इलाकों में कम है.
In the case of high schools, the number was calculated to be 32 for males and 30 for females in rural areas, whereas in urban areas, the number for males and females was 49 and 63 respectively. यानी हम ये देखते हैं कि अगेन हाई स्कूल के लेवल के ऊपर या इस खास लेवल पे 32 मेल्स हैं और 30 फीमेल्स हैं रूरल एरियाज में, जबकि अर्बन एरियाज के अंदर जो मेल्स हैं और वो फीमेल्स हैं वो 49 और 63 हैं रिस्पेक्टिवली. सो अगेन वी सी दैट देयर इज अ हायर एनरोलमेंट रेट इन द अर्बन एरियाज. देयर आर शार्प ड्रॉप्स in overall enrollments at the high school level, but girls who make it beyond middle school tend to drop out less than boys at the high school level, especially in urban areas. और एक अहम बात जो सामने आती है वो ये है कि शार्प ड्रॉप आउट्स हैं, शार्प एक हम कमी देखते हैं ओवरऑल एनरोलमेंट्स की जो हाई स्कूल की तरफ जाते हुए है, यानी कि हाई क्लासेस की तरफ है. लेकिन जो गर्ल्स मिडिल स्कूल में आ जाती हैं वो उनकी कोशिश ये होती है और उनके स्टेटिस्टिक्स ये बताते हैं कि वो फिर मेट्रिकुलेशन को कंप्लीट करती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, जिनका कि ड्रॉप आउट रेट इस लेवल के ऊपर ज़्यादा हो जाता है.